اسٹڈی پوائنٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا کلاس ہم اندازہ قدر کے تعلق سے دیکھیں گے۔ بھائی اندازہ قدر کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ جان لے کہ اندازہ قدر کس کو کہتے ہیں؟ تو اندازہ قدر ملیانکن کو ہم کہتے ہیں۔ کیا کس کو کہتے ہیں؟ ملیانکن کو کہتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں اندازہ قدر، ٹھیک ہے؟ پہلے سوالات پڑھتے ہیں، سوالات کے بعد ہم جوابات کی طرف چلیں گے۔ تو اندازہ قدر یعنی تعین قدر کی تعریف کرتے ہوئے اس کی اہمیت پر روشنی ڈالیے۔ مطلب ملیانکن کی آموزش میں ملیانکن کی اندازہ قدر کی کیا اہمیت ہے، اس پر گفتگو کرنا ہے۔ پھر ہے تعین قدر صرف بچوں کی ترقی جاننے کا آلہ ہے یا معلم کو اپنے طریقہ تدریس میں مثبت تبدیلی کر اسے زیادہ مفید اور کارآمد بنانے کا ذریعہ ہے، واضح کرے۔ یعنی تعین قدر یعنی اندازہ قدر، یہ جو ملیانکن ہے یہ صرف بچوں کی ہی ترقی جاننے کا آلہ ہے یا ذریعہ ہے، یا معلم کو بھی اپنے طریقہ تدریس میں بہتری لانا ہے، اس میں تبدیلی لانا ہے تاکہ تدریس کارآمد اور مفید ہو سکے۔ تو اسی کے بارے میں سوالات ہیں، تو جوابات دیکھتے ہیں۔ چلے دیکھیں، جواب ہے بھائی اندازہ قدر یعنی تعین قدر ایک ایسا عمل ہے جو بچوں کی پوری ترقی کا احاطہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تعین قدر تدریس کے عام مقاصد کے حصولیابی سے لے کر شخصیت کی تعمیر سے وابستہ ہر ایک کارکردگی اور سرگرمی میں ایک محاسبہ ہے۔ کیا مطلب بھائی؟ یعنی اندازہ قدر ملیانکن ایک ایسا عمل ہے جو بچوں کی جتنی ترقی ہوتی ہے اس کا احاطہ کرتا ہے، اس کی جانچ کرتا ہے۔ اور تعین قدر تدریس کے مطلب سیکھنے کے عام مقصد کے حاصل کرنے سے لے کر شخصیت کی تعمیر سے وابستہ، یعنی شخصیت کو کس سانچے میں ڈھالا جائے، شخصیت کی صحیح تعمیر کی جائے، اس سے وابستہ ہر ایک کارکردگی اور جتنی گتیویدیاں سرگرمیاں ہیں اس میں ایک محاسبہ ہے، ایک جانچ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے؟ تعین قدر ایک ایسا عمل ہے جو بچوں کی پوری ترقی کا احاطہ کرتا ہے، اور تعین قدر عام مقصد کے حاصل ہونے سے لے کر شخصیت کی تعمیر سے وابستہ ہر ایک کارکردگی اور سرگرمی میں ایک محاسبہ ہے، ایک جانچ ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، تعین قدر صرف بچوں کی علمی استعداد کا ہی نہیں ہوتا بلکہ ان عوامل کا بھی ہوتا ہے جن کے اثرات کو وہ متاثر کرتے ہیں۔ یہ فطری طور سے بچوں میں پائے جاتے ہیں، مثلاً سماجی شعور، جمالیاتی احساس، جذباتی توازن اور اخلاق و اقدار وغیرہ۔ یعنی تعین قدر جو ہے، جو بچے کو صرف ایجوکیشن، جو اس کی صلاحیت، جو علمی استعداد ہے اسی کا نہیں ہوتا بلکہ اس ذریعے کا ہوتا ہے جن کے اثرات کو وہ متاثر کرتے ہیں، جن کے ذریعے سے وہ حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ فطری طور سے بچوں میں پائے جاتے ہیں۔ جیسے سماج کو دیکھ لیجئے، اب سماجی شعور کیسا ہے بچہ کا، اس حساب سے بھی کیا کرتے ہیں بچوں کا تعین قدر ہوتا ہے۔ جمالیاتی احساس، ان کے اندر احساسات کس طرح ہے، جذبات کس طرح ہے، ان کے اندر توازن کیسا ہے، ان کا توازن بگڑا ہوا ہے یا اچھا ہے، پھر ان کے اخلاق کیسے، ان کے کردار کیسے، ان کے اقدار کیسے۔ تو ان ساری چیزوں کا جانچ ہوتا ہے تعین قدر کے ذریعے سے۔ اب دیکھیں، ظاہر ہے جب تعین قدر کا دائرہ اس قدر وسیع ہو تو معلمین کی ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مطلب تعین قدر صرف بچوں کا جاننے کا ہی ایک جانچ نہیں بلکہ اس کے علاوہ جس کے ذریعے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کا جانچ کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ تو اب جب اتنا چیز کا جانچ کا ذریعہ ہے تو اب ٹیچر کی ذمہ داریاں تو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تعین قدر نہ صرف بچوں کی حصولیابی کا ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ اس طریقہ تدریس کا بھی ہوتا ہے جس کا استعمال بچوں کے ساتھ بطور معلم
मुअल्लिम दराजात में और दराजात के बाहर करते हैं। सही कहा जा रहा है कि जो तअय्युन क़द्र है सिर्फ बच्चों के हुसूलियाबी यानी बच्चे ने कितने हासिल कर लिया है, कितना सीखा है, सिर्फ इसी का नहीं होता है बल्कि उस तरीके तदरीस का भी होता है। मतलब तदरीस का जो तरीका है, पढ़ाने का तरीका है, उससे का भी होता है, जिसका इस्तेमाल बच्चों के साथ क्या करते हैं, बतौर मुअल्लिम क्लास में या क्लास के बाहर करते हैं। इन सारी चीज़ों का अंदाज़े क़द्र होता है, मूल्यांकन होता है। देखिए, अगर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी मखसूस इस्तेदाद में हमारे बच्चों ने किस हद तक कामयाबी हासिल की है, तो हमें यह भी जानना ज़रूरी है कि हमें किस हद तक अपने तरीक़े तदरीस में तब्दीली करने की ज़रूरत है। मतलब क्या कहा जा रहा है, अगर हम एक टीचर हैं तो हम ये जानने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि किसी मखसूस इस्तेदाद में हमारे बच्चों ने किस हद तक कामयाबी हासिल की है, कितने तौर तरीके सीख लिए हैं, कितना बच्चों ने सीख लिए हैं। तो उसको जानने से पहले हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हमें जो हम टीचर हैं हमें किस हद तक अपने तदरीस में तब्दीली लानी है, किस हद तक अपने तदरीस को प्रोग्रेस कराने के लिए नया ट्रिक अपनाना है, नया तरीका अपनाना है, जिससे बच्चे की आगे हद तक उनकी कामयाबी हो सके। तो उनके जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम किस तरीके को अपनाएं। ठीक है, हम अपना मुहासबा करें। अब देखें, लिहाजा ये दो तरफा मुहासबा है मुअल्लिम और बच्चों का, ताकि दोनों को मेहनत की तरगीब मिल सके और उन्हें अपनी कामयाबी पर खुशी भी हो सके। बिल्कुल सही है कि ये दोनों तरफों का मुहासबा यानी दोनों तरफ का जांच है। इसमें मुअल्लिम और मुतअल्लिम यानी बच्चे का भी जांच करना है, ताकि दोनों की मेहनत का पता चल जाए और दोनों की मेहनत की तरगीब मिल सके और उन्हें बच्चों को क्या है, कामयाबी पर उनको खुशी भी हासिल हो सके। तो इन सारी चीज़ों का क्या होता है, मूल्यांकन होता है, अंदाज़ा क़द्र होता है। अब देखें क्या है भाई, तअय्युन क़द्र का मकसद न सिर्फ हुसूल इल्म के बारे में जानना होता है, बल्कि वह निसाब और तरीक़े तदरीस को बेहतर बनाने में मुआविन भी होता है, मददगार भी होता है। क्या कहा जा रहा है भाई, इसमें कहने का मतलब यह है कि तअय्युन क़द्र का मकसद सिर्फ इल्म हासिल करने के बारे में ही जानना नहीं है, बल्कि ये भी जानना है कि जो पाठ्यक्रम है, जो तदरीस का तरीका है, उसको इसके ज़रिए से यानी मूल्यांकन के ज़रिए से, अंदाज़े क़द्र के ज़रिए से और किस तरह बेहतर बनाया जा सके, ताकि बच्चों की हुसूलियाबी में कोई दिक्कत और दुश्वारी ना हो। ठीक है, अब देखें, ये जामिद नहीं बल्कि मुतहर्रिक है। मतलब ये ठोस नहीं है बल्कि एक ही जगह चिमटा हुआ है तो चिमटा हुआ, बल्कि मुतहर्रिक है, हरकत करने वाला है, क्योंकि ये तरीक़ाकार मवाद और अफराद की बदलती हुई ज़रूरियात के साथ साथ बदलता रहता है। मतलब जो आमोजिश का हिस्सा है, जो अंदाज़े क़द्र है, वो ऐसा नहीं है कि एक चीज़ लागू कर दिया गया तो उसी पर चल रहा नहीं, बल्कि ये तरीक़ाकार मवाद और अफराद की बदलती हुई ज़रूरियात यानी जो फ़र्द है, जो बच्चे सीखने वाले, उनकी क्या ज़रूरियात है, उनकी जो बदलती हुई हालत है, उसके साथ अंदाज़े क़द्र भी बदलता रहता है। ठीक है, जिसके ज़रिए तदरीसी अमल और तदरीसी ज़रूरियात को बेहतर बनाया जा सके। मतलब इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आमोजिश में क्या अंदाज़े क़द्र को अपनाया जाता है तो इसके ज़रिए से तदरीसी अमल को और बेहतर बनाया जा सकता है। ये सिर्फ बच्चों के जांचने का ही आला नहीं, बल्कि बहुत सारी चीज़ों, तदरीस में क्या तब्दीली लानी है, मुअल्लिम को किस तरह पढ़ाना है, इन सारी चीज़ों को जांचा जाता है, ताकि मुअल्लिम अपने तरीके तदरीस को और बेहतर कर सके और बच्चे अपने तदरीस को, पढ़ाई को अच्छे कर सके। तो इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा क़द्र होता है। देखें, साथ ही इसके ज़रिए ही तदरीसी तरीक़ों की तासीर और मवाद की नफ्सियाती और मंतिकी सेहत मालूम की जाती है, ताकि बच्चे की हमाजहत तरक्की की जांच होती रहे और किसी ख़ास मैदान में उसकी कामयाबी की पेश क़ियासी भी हो। ठीक है, इसके ज़रिए साथ ही इसके ज़रिए
तदरीसी तरीके की तासीर और मवाद की नफ्सियाती और मंतिकी सेहत मालूम की जाती है। मतलब इसके बच्चों के साथ साथ क्या होता है, तदरीस के जो तरीके हैं उसको और किस तरह दिलचस्प बनाया जाए, मवाद की जो नफ्सियाती है तासीर और मवाद की नफ्सियाती और मंतिकी सेहत को मालूम किया जाए। जो मवाद दिया जा रहा है बच्चे को, वो बच्चे के लेवल के है या नहीं है। बच्चे प्राइमरी सतह के हैं लेकिन उनको आला सतह का मवाद दिया जा रहा है, तो ये बेहतर नहीं होगा। तो बच्चे के ख्याल रखना ज़रूरी है, बच्चे का लेवल को देखना ज़रूरी है, तब जाकर हम बच्चे की हमाजियत तरक्की के जांच करते होती रहेगी और इस तरह बच्चे कामयाबी करते रहेंगे, किसी ख़ास मैदान में भी दिलचस्प अपना नुमाया कारकर्दगी अंजाम देंगे। अब देखें, यहाँ पहले की तदरीस और मौजूदा तदरीस में बदलाव आया है। पहले की तदरीस और थी, मतलब पहले का पढ़ाई का तौर तरीका और था। बच्चों को क्या किया जाता था, रटवा दिया जाता था, दे दिया जाता, एक चैप्टर याद कर लो। लेकिन उस तरीका को बदल दिया गया है। पहले के तदरीस और अब के तदरीस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बदलाव आया है। अगर इसका मुहासबा किया जाए तो ये बात साफ तौर पर उभर कर सामने आती है कि आज तदरीस में तअय्युन क़द्र का मतलब ये क़तई नहीं कि मुअल्लिम ने कितना सिखाया है, बल्कि आज तअय्युन क़द्र का मतलब ये है कि हमारे बच्चों ने कितना सिखाया। पहले क्या होता था कि टीचर ने कितना सिखाया, टीचर पर ध्यान दिया जाता है, शिक्षक केंद्रित कक्षा था। लेकिन अब क्या है, बाल केंद्रित है, तिफले मरकूज क्लास है, ठीक है। तो अब का तअय्युन क़द्र का मतलब ये है कि हमारे बच्चों ने कितना सिखाया। ये मतलब नहीं कि उस्ताद ने कितना सिखाया है, बल्कि बच्चों ने कितना सिखाया। तो बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं, तो इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। अब अंदाज़ा क़द्र का मतलब और मकसद क्या है, क्यों ज़रूरी करार दिया गया है भाई। तो इसमें क्या होता है कि ये पता लगाया जाता है कि हर एक तालिब इल्म की ज़रूरतें और अंदाज़ और उनके सीखने का तरीका क्या है। फिर इसमें यह भी लाया जाता है कि तदरीस और आमोजिश में किस तरह सुधार लाना है भाई। इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, उस्ताद और बच्चे और वालिदैन को तालीमी निज़ाम में इस्लाह के लिए भी जोड़ा भी जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखा जाता है। अब अंदाज़ा क़द्र के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक होता है तशकीली जाँच, उसके बाद होता है तकमीली जाँच, उसके बाद होता है तशखीसी जाँच। तकमीली जाँच किसको कहते हैं, ये अंदाज़ा क़द्र के अक़साम है, सारे किस्में हैं, ठीक है। तो तशकीली जाँच किसको कहते हैं भाई, उस जाँच को कहते हैं कि मुअल्लिम तदरीस के दौरान ही क्या करता है। इसमें तशकीली जाँच में क्या करता है, मुअल्लिम तदरीस के पढ़ाने के दौरान ही बच्चा की जाँच कर लेता है कि तलबा ने कितना सीखा है। उसके बाद है तकमीली जाँच। तकमीली जाँच में क्या होता है, जब निसाब पूरा ख़त्म हो जाता है तब टीचर क्या करता है, निसाब के इख्तिताम पर जांच करता है कि तालिब इल्म ने निसाब से कितना सीखा है, ठीक है। उसके बाद एक होता है तशखीसी जांच। तो तशखीसी जांच में ये होता है कि तालिब इल्म तदरीस के दौरान जो नाकाम हो जाते हैं तो उन नाकामी की जांच करना क्या कहलाता है, तशखीसी जांच कहलाता है। फिर इसके और भी बहुत सारे नमूने होते हैं अंदाज़ा क़द्र के, जैसे होता है कि आमोजिश का अंदाज़ा क़द्र, फिर होता है आमोजिश के लिए अंदाज़ा क़द्र, फिर होता है अंदाज़ा क़द्र बतौर आमोजिश, फिर होता है आमोजिश में अंदाज़ा क़द्र। तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो इससे पता ये चलता है कि अंदाज़ा क़द्र सिर्फ बच्चों की हुसूलियाबी के नहीं होता, बल्कि तदरीस में जो भी चीज़ पेश आते हैं, बच्चे के जो भी अवामिल मुतासिर करते हैं, वो सारी चीज़ों का अंदाज़ क़द्र मूल्यांकन होता है। तो आज का क्लास ख़त्म करते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। शेयर और लाइक भी कर दें आप। चले।